Retail Management Block 2. Fine. So today we'll be going through in brief about merchandising. That is, what is merchandising, and the topic name is merchandise assortment planning. Now merchandise assortment planning क्या है, उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. Now assortment means हमें पता है कि in a retail there would be different types. There are different types and different what to say, different classes of products that are available. Now this variety, a retailer must ensure that a proper variety with their different product depth, product width, and all those things are required to be maintained in order to satisfy the customers, because there would be different types of customers, and there would be different types of customer needs altogether. So merchandise assortment is very much required, and for that you need to plan well. The retailer must make decisions regarding the merchandise offered depending on the sales targets and financial objectives of the store. What is merchandise? Merchandise is simply a merchant will sell what? Merchandise. Stock जो बोलते हैं ना, merchandise उसको ही हम लोग बोलते हैं. Now merchandise comes in a variety of sizes, colors, makes and models. Fine. Merchandise will definitely, as I said, that there will be different types of merchandise. So here the entire focus is on the merchandise collection, because the merchandise will be in different sizes will be there, different colors will be there, different makes and models. So different types of things that needs to be considered. So merchandise, here we are only talking about the merchandise collections. Fine. Retailers should be very careful while deciding on the amount of stock to be maintained in each category. Now retailers need to plan well. सी रिटेलर्स ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अल्टीमेटली रिटेलर्स जो एकदम एंड सेगमेंट है, एकदम फाइनल सेगमेंट हम बोल सकते हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संग मीट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली ये वाला जो सेगमेंट है ना, रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स, ये बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हो रिस्की सेगमेंट है, क्योंकि कोई कंज्यूमर्स आया रिटेल में और उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला, इफ अ कंज्यूमर्स रिटर्न, then it is most probabilistic that consumer will not return to that specific retailer. तो इसलिए रिटेलर्स को एक वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट रखने की ज़रूरत होती है अपने मर्चेंडाइज की. अब इसमें भी डिसाइड करना कि कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट को ज़्यादा रखना है, लार्ज स्टॉक मेंटेन करना भी प्रॉब्लम है, कम रखना भी मुश्किल है. तो एक प्रॉपर मतलब एक ट्रेड ऑफ बनाना, ये मतलब बैलेंस बनाना, ट्रेड ऑफ द मर्चेंडाइज और द लेवल ऑफ स्टॉक्स जो भी बोल सकते हैं हम, एंड द टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ असॉर्टमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड द इन्वेंट्रीज, कैटेगरीज ऑफ असॉर्टमेंट आप ले लो, एंड इन्वेंट्रीज टू बी मेंटेन, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है रिटेलर्स को. For a judicious mix of merchandise and its arrival in the store for sale at the right time, several individuals and functional departments such as purchase, warehouse, finance, store operations, etc., have to coordinate their activities. Managing merchandise properly is of great significance for any retail firm. See, managing this merchandise is one of the most significant tasks for any retail firm. ये हम लोग भी देखते हैं ना, कोई भी आप स्टोर में चले जाओ, वहाँ पे हम लोग कितनी वैरायटी मांगते हैं. ये प्रोडक्ट का, इस कंपनी का ये एक प्रोडक्ट चाहिए, लेट्स से प्रोडक्ट एक्स चाहिए, तो सपोज 1 2 इतनी सारी कंपनीज है, टिल एन मैं 1000 कंपनीज ले रही हूँ. अब मुझे उनमें से 100 यूनिट चाहिए, 100 वाला नंबर चाहिए कंपनी का, या nth यूनिट एन कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए. अब उसमें मुझे ये साइज चाहिए, फिर इसमें मुझे ये कलर चाहिए. तो हम समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड ये टास्क है, और एक रिटेलर के लिए अपने मर्चेंडाइज के असॉर्टमेंट, प्रॉपर असॉर्टमेंट करना एज पर द कंज्यूमर डिमांड कितना टफ हो जाता है इन दिस सेगमेंट, राइट. Retailers take many decisions pertaining to thousands of individual products being offered for sale and sourced from hundreds of vendors. Therefore, retailers should adopt a well-organized and systematic merchandise buying process. तो यहाँ पे retailers क्या कर सकते हैं? Retailers अपने merchandise जो purchasing है उसको एक proper मैंने एक proper process में, systematic process में ला सकते हैं. Fine. Now, इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है convert product categories into sales revenue through proper merchandise management.
यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका मेन है कि हम लोग पहले अपने जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज को रखना है, किसको नहीं रखना है, वो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेल्स रेवेन्यू थ्रू प्रॉपर मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, set financial objectives and use gross profit margin और return on inventory management। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आएगी कि कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी से क्या रेवेन्यू जनरेट होना है, वो चीज हम समझेंगे। देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट का समझ में हमें आएगा कॉन्सेप्ट। देन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री, ROI में लिख रही हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेंट्री। कैटेगरी लाइफस्टाइल्स टू प्रेडिक्ट सेल्स। नाउ कैटेगरी लाइफस्टाइल्स मीन्स हर प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी है और उसके हिसाब से उनका लाइफस्टाइल्स भी होता है। लाइफस्टाइल बोलो, लाइफ साइकिल बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्यों उसके हिसाब से आपका लाइफ साइकिल के हिसाब से फिर अगेन यू कैन प्रेडिक्ट दी सेल्स। हम लोग सेल्स प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वील बी एबल टू डेवलप अ प्रॉपर असॉर्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ से हमें प्रॉपर एक असॉर्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस समझ में आएगा। एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी टू फुलफिल कस्टमर नीड्स। अभी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट मिक्स क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये कुछ चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग इज ऑर्गेनाइजिंग दी बाइंग प्रोसेस बाय कैटेगरीज। तो सबसे पहले चीज है अपने बाइंग प्रोसेस को बाय कैटेगरीज हमें ये करना है। तो मर्चेंडाइजिंग का ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो रिटेलर का एक फंडामेंटल एक मतलब क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनालिसिस इज डिसीजन मेकिंग पर्टेनिंग टू मर्चेंडाइजिंग। रिटेलर का एक सबसे टफ टास्क बोल सकते हो, या रिटेलर का एक फंडामेंटल टास्क आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनालिसिस बोलते हैं हम लोग इसको। यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द डिसीजंस पर्टेनिंग टू मर्चेंडाइजिंग। तो डिसीजंस पर्टेनिंग टू मर्चेंडाइजिंग, तो ये बहुत टफ टास्क है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संग मीट कर रहा है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संग वो क्या बोलता है इन कांटेक्ट। तो वहां पर क्या हो रहा है, रिटेलर्स के संग डायरेक्टली मतलब रिटेलर जो वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संग कांटेक्ट में। तो यहाँ इस जो लास्ट लेवल बोलो या फर्स्ट लेवल बोलो जो भी, यहाँ पर क्योंकि कंज्यूमर्स का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, यहाँ पे कंज्यूमर्स अगर किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर द रिटेलर एज वेल एज फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो रिटेलर का ये फंडामेंटल एक ये है डिसीजन कि कौन से मर्चेंडाइज को रखना है, कितनी क्वांटिटी में रखना है। नाउ कैटेगरी, व्हाट इज अ कैटेगरी, कौन कौन से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है। तो कैटेगरी मतलब क्या है, इज अ डिस्टिंक्ट manageable group of products or services which are perceived by customers to be interrelated and or substitutable। कैटेगरी मीन सिंपली एक हम लोग बोलते हैं कैटेगरी, बोलते हैं कैटेगरी मतलब क्या हो गया, एक डिस्टिंक्ट, दिस इज अ डिस्टिंक्ट एंड मैनेजेबल group of product or services। So category is a distinct or manageable group of product or services। manageable बोल सकते हैं ना, group of product और services, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कैटेगरी। ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि MCQs आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से, ठीक है। Now, for example, men's jeans and girls' jeans are two categories which have similar characteristic। Now, category management, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट के ऊपर। अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है मर्चेंडाइजिंग में, तो कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी पे हमारा ज़्यादा फोकस है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, तो वो कैटेगरी के ऊपर हम फोकस करेंगे ना। Category management helps a retailer orient his strategic decisions to reach his customer base better। For example, Motorcraft, the automotive parts brand for Ford Motor Company, keeps an inventory of spare parts of aging vehicles in the US। देखो यहाँ बता रहा है कैटेगरी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैटेगरी मैनेजमेंट जो है एक रिटेलर के लिए क्या बोल सकते हो, इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। पूरी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर बेस करके ही है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा कस्टमर जो रीच हम करेंगे या कस्टमर बेस को अच्छे से सर्व करने के लिए सब चीज ही इसी के ऊपर है कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी पे हम फोकस करें। तो जैसे मोटरक्राफ्ट के बारे में बोल रहा, मोटरक्राफ्ट एक कंपनी है, द ऑटोमेटिव पार्ट्स ब्रांड फॉर फोर्ड मोटर कंपनी।
ये जो मोटर क्राफ्ट जो कंपनी है ये एक्चुअली ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है फॉर फोर्ड मोटर कंपनी। ये क्या करती है, दिस कीप्स एन इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट जो होता है ना, ऑफ एजिंग व्हीकल्स इन द यूएस। तो ये क्या करती है, मोटरक्राफ्ट क्या करती है, ये एजिंग जो व्हीकल्स है, जो पुराने व्हीकल्स जो मैंने पुराने होते जा रहे हैं, वो सारे व्हीकल्स का जितना भी इन्वेंट्री या स्पेयर पार्ट्स को रखती है अपने पास। Rightly sensing the fact that US roads has many 16 plus aged vehicles, this firm supplies auto parts to its distributors and shops at a competitive price. अभी क्या होता है, इनको पता है कि यूएस में ऐसे 16 क्या बोलते हैं, 16 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ बहुत सारी हैं, एंड इसके कारण उनके जो सप्लाईज हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सकती है, मतलब इन्वेंट्री जो लगता है। इट स्ट्रीमलाइन इट्स इन्वेंट्री ऑफ मोर देन 4,000 पार्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ एजिंग व्हीकल्स एंड टू प्रोवाइड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड satisfaction at large. The above example shows that category management is a process of managing all stock keeping units SKUs within a product category. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब हम लोग कैटेगरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, इसमें हमें समझ में आया है दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी आपको समझने के लिए भी ये ज़रूरी है। एसक्यूज क्या हुआ, ऑल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट है, कैटेगरी मैनेजमेंट में क्या होगा, इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग ऑल स्टॉक, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ऑल स्टॉक कीपिंग यूनिट्स मतलब विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी, एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, एक साइज का, दो साइज का, जितने भी तरह के हैं सारे वैरायटी वहां पे अवेलेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसकेयूज। It involves the simultaneous management of price, shelf space, merchandise category, promotional efforts, and other elements of retail mix within the category, and it is based on the firm's goals, the changing environment, and the consumer behavior. Now, definitely, firm का जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए कैटेगरी मैनेजमेंट करना है, एंड नॉट ओनली दी फॉर्म्स गोल्स, यहाँ पर आपको और जो चीज़ें जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट, वो तो एक फैक्टर है ही कि ऑर्गेनाइजेशनल के संग इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एंड दी कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ कोर्स, ये दो चीजें भी संग संग में चल रही हैं, ठीक है। दिस कैटेगरी मैनेजमेंट हैज टू मेन ऑब्जेक्टिव, satisfying the customer and increasing sales in each category. ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, पहले ही हमने देखा कि कैटेगरी मैनेजमेंट का मेन फोकस है दैट इज इंक्रीजिंग सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू कैसे करेंगे, बाई इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइंग द कस्टमर बेस। कस्टमर का अगर सेटिस्फाई रखते हो, आपके पास ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो ऑटोमेटिकली सेल्स रेवेन्यू अच्छी होती है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग मर्चेंडाइजिंग इज शेयर्ड बाय कैटेगरी मैनेजमेंट मैनेजर एंड मर्चेंडाइज प्लानर। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग में ये दो लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक हो गया आपका कैटेगरी मैनेजर और दूसरा हो गया मर्चेंडाइज प्लानर। ये दो होते हैं जिनका काम होता है मर्चेंडाइज प्लानिंग को देखना, ठीक है। यहाँ पर रिटेलिंग तो रहेगा ही, और रिटेलर्स को भी, मैंने जैसे आप एक कंपनी में हो, वहां से आप कैटेगरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इफ यू आर अ मर्चेंडाइज प्लानर, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डील विद डिफरेंट रिटेलर। सपोज आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अब नाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू दी होलसेलर, रिटेलर्स एंड ऑल, तो आपको वहां पे रिटेलर्स के संग डायरेक्टली कांटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब आप एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी तो मर्चेंडाइजिंग तो सप्लाई चेन में आप देखो हर जगह पर प्रॉपर होना चाहिए। इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन हैज टू बी डन फ्रॉम एंड टू एंड लेवल, एंटायर सप्लाई चेन में प्रॉपर फ्लो होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ये एंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पे कैटेगरी मैनेजमेंट को उनके वेंडर्स हो या मर्चेंडाइज सिलेक्शन, मर्चेंडाइज प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, हर कोई के संग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके करना होता है काम, ठीक है। अकेले अकेले बैठ के मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई कितना प्रोडक्ट, कितनी राइट क्वांटिटीज होगी, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, कौन सा स्टोर करना है, ऐसे हम नहीं बात कर सकते। नाउ कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस, अब हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस में।
डिफरेंट टिपिकल कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस में। कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस एक्चुअली क्या हेल्प करेगा हमको कि भाई व्हाट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज शुड बी ऑफर टू द कस्टमर, क्या मर्चेंडाइज कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। मैं लिख रही हूँ व्हाट टाइप, हो गया ना। फिर आ गई आपकी क्वांटिटीज, क्या क्वांटिटीज मुझे रखनी है वो मुझे देखना है, ठीक है। देन दी प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो हो गया। विच पार्ट्स ऑफ द स्टोर शुड बी असाइन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मर्चेंडाइज। अब देखो स्पेस जो है आपके स्टोर में, क्योंकि स्टोर में ये भी बहुत स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करता है। जैसे आप बड़े एक स्टोर में जाते हो, जैसे रिटेल बिग बाजार एंड ऑल स्पेंसर्स वगैरह में, तो एंटर करते कौन सी चीज़ आपको सामने अट्रैक्ट करिए, तो कौन सा स्पेस कहाँ पे घुसते ही आपको वो दिखे। हाउ मच सेल्फ स्पेस शुड बी असाइन टू अ पर्टिकुलर मर्चेंडाइज कैटेगरी। अब हाउ मच सेल्फ स्पेस, कितना सेल्फ स्पेस आप दोगे, कितना स्पेस आप एक कैटेगरी टू ईच कैटेगरी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर प्ले करता है ना। कितना मतलब किस कैटेगरी को कितना सेल्फ स्पेस दिया जा रहा है, ये सारी चीजें। हाउ मच सेल्फ से व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, नाउ व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी। देखना मेट्रो कैश एंड कैरी वगैरह में बाहर से ही आपको दिखने लगेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए एडवर्टाइजमेंट। सो ये भी एक कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस का ही एक तरीका है। A typical category management process split into the following step। अब हम लोग steps में आ जा रहे हैं कि what are the steps involved। इसमें first step आप ले लो, first step is category definition। पहले आपको डिफाइन करना है। डिफाइनिंग अ कैटेगरी इज द फर्स्ट स्टेप इन कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस इन विच द रिटेलर क्लासिफाइज द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर एंड इट्स पैकेजिंग। अब ये सबसे पहली चीज है कैटेगरी डेफिनेशन, जहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट है, या उसको क्लासिफाई करते हैं नीड्स में, वांट्स में, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। रोल, अब सेकंड हो गई आपकी रोल ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी डेफिनेशन में ये जो कैटेगरी हमने बताया उसका रोल क्या है। डिसाइडिंग ऑन द रोल ऑफ अ कैटेगरी इज द सेकेंड स्टेप इन द कैटेगरी मैनेजमेंट। तो आपकी कैटेगरी डिफाइन किया आपने, सेकेंड हो गई आपकी, आपको रोल ऑफ कैटेगरी को समझाना है कि उस स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का रोल क्या है। Deciding on the role of a category is the second step in the category management process. In this step, the retailer decides the role of each category and determine its position in the category mix. In general, there are 4 category roles. अब 4 category roles क्या है? एक हो गई आपकी destination categories, ठीक है? These are used by retailers to position themselves as the preferred stores of customer through their superior services and better value offering. For instance, the fresh foods, fruit, vegetables made available at the particular hypermarket make it a choice location for customers for food product. For instance, Reliance Fresh is generally preferred by the customer for fresh food, fruits and vegetables, whereas Croma is preferred for its wide assortment of electronic goods. तो डेस्टिनेशन कैटेगरीज वो कैटेगरी हो गई जहाँ पे रिटेलर ने अपने आप को एक प्रेफर्ड स्टोर्स के रूप में पोजीशन करके रखा है। यू हैव प्रेफर्ड, मतलब क्या होता है, प्रेफर्ड लोकेशन जैसे बोलते हैं ना, वैसे प्रेफर्ड स्टोर्स इन दी माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, मैं बोल सकती हूँ कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स प्रेफर्ड उसको ही करते हैं, उस कैटेगरी में उसको ही प्रेफर करेंगे। जैसे बताया ना क्रोमा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में क्रोमा को ही लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज उनके पास वाइड असॉर्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। कोलकाता में जैसे मैं खोसला को बहुत अच्छे से जानती हूँ, खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पुराना है, तो वो भी एक पहले वो भी एक क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन कैटेगरीज से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। अब आ गई आपकी रूटीन कैटेगरीज। Routine categories, these are products that are used by customers on a daily basis, ठीक है, on a daily basis. Products placed under routine categories include hair oils, detergent powders and cakes, shampoos etc. तो ये routine categories हैं जो daily का सामान है. Then convenience categories. कन्वीनियंस कैटेगरीज नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारे स्टोर्स हो गए कन्वीनियंस। जैसे आपका इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट दैट आर मोर कन्वीनियंटली परचेज बाय कस्टमर्स फ्रॉम नेबरहुड रिटेल आउटलेट रादर देन आउटलेट एट अ ग्रेटर डिस्टेंस। मतलब जो हमारे घर के आसपास हैं प्रोडक्ट्स, हम लोग को ईजिली मिल जा रहे हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो कन्वीनियंस कैटेगरी में आ जाते हैं। देन कम्स दी सीजनल कैटेगरीज।
includes product that are bought occasionally, दुर्गा पूजा, दिवाली, शादी एंड ऑल, ये सब टाइप का. फॉर इंस्टेंस दिवाली का शॉपिंग करते हैं तो वो सब आ गया आपका सीजनल कैटेगरीज में. ठीक है. प्रेफर्ड प्लेस टू शॉप फॉर क्रैकर्स या केक्स, ये सब भी हो सकता है. थर्ड स्टेप इज कैटेगरी assessment. ठीक है. Category assessment is the third step in the category management process. In this step, retailers conduct a detailed analysis of the sales, profit and return on assets and investment depending on the stock keeping units, subcategories, brands, etc. Retailers also assess the categories with the help of data on the consumers, vendors और competitors. अभी category assessment में क्या हो गया, ये थर्ड स्टेप है जहाँ पे हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस कैटेगरी को एसेस कर रहे हैं कि उस कैटेगरी से क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या सेल्स हो रहा है, रिटर्न ऑन एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, और स्टॉक कीपिंग मैंने कितना स्टॉक रखा है, सब कैटेगरीज, ब्रांड्स क्या है. रिटेलर्स ऑल्सो असेस द कैटेगरीज विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑन द कंज्यूमर्स, वेंडर्स और कॉम्पिटिटर्स. सो कैटेगरी असेसमेंट में ओवरऑल आप देख लो, यहाँ पर उस स्पेसिफिक कैटेगरी को हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट, उस कैटेगरी को, जैसे मैं बता रही हूँ मेन सिंगल्स, इनके प्रोडक्ट्स में अगर अपने स्टोर पे रख रही हूँ, या वुमेन सिंगल्स, उनके हिसाब से, उनके चॉइसेस के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट रख रहे हैं तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी को असेस करना कि वहां से मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आरओआई क्या जनरेट हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स नीड्स टू बी असेस्ड वेल. देन नेक्स्ट इज कैटेगरी स्कोर कार्ड. ठीक है. Category scorecard is the fourth step in the category management process. This step involves developing bottom line and setting targets to measure the performance of the categories. Retailers use a tool known as category role matrix together with parameters like the sales volume and gross margin on investment, commonly referred to as GMROI, for measuring the performance of a category. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कैटेगरी स्कोर कार्ड. यहाँ पे जैसे हम लोग एक बनाते हैं ना, बीसीजी मैट्रिक्स बनाते थे, तो वहाँ पे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिफरेंट ये करते थे कि डिफरेंट मेरे यूनिट्स हैं, उसके कौन सी यूनिट प्रॉफिटेबल है, कौन सा यूनिट प्रॉफिटेबल नहीं है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में रखते थे और उसके हिसाब से हम लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो बनाते थे. अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक असेसमेंट दिया हुआ है, कैटेगरी स्कोर कार्ड दिया हुआ है. यहाँ जैसे पॉलिटिकल, यहाँ पे एक कैटेगरी स्कोर कार्ड है, कौन कौन सा कैटेगरी कैसे है, बेसिक रूल्स. अच्छा, ये जैसे एक बहुत इजी एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी सोइंग, प्रोग्राम कैटेगरी इन टैबुलर फॉर्म. जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी है ABCDEF, ये डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है. अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया इनटू बेसिक, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. इसका मतलब मे बी ये इनके सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से उन्होंने इसको डिवाइड किया है कि बेसिक में इतना रेवेन्यू, ब्रोंज में इतना, सिल्वर में इतना, इस तरीके से. ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट कैटेगरी को डिवाइड किया. लेट्स सी, ये एक बेसिक एग्जांपल दिखा. स्कोर कार्ड यही होता है, ये तो क्लियर है ना, स्कोर कार्ड ऐसा ही होता है. मैनेजमेंट, ये सबसे बेसिक एग्जांपल था, वन ऑफ द बेस्ट और इजी टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप असेसमेंट, समरी, अलाइनमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम वेट रेटिंग. यहाँ पे नहीं मिल रहा वो. देखो इसको मैं एक बार समझा देती हूँ. प्रॉपर इसका कैटेगरी स्कोर कार्ड नहीं मिल रहा है. देखो यहाँ पे एक आप समझ लो कि डिफरेंट प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक बॉटम लाइन डेवलप कर रहे हैं. सपोज ये मैंने अपने बॉटम लाइन रखा, दिस इज माय बॉटम लाइन. ठीक है. एंड सेटिंग टारगेट्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैटेगरी, ये मेरा बॉटम लाइन है. अब कोई प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ए, वो बॉटम लाइन तक है. ठीक है, वो मेरा इस लेवल पर ही दे रहा है. प्रोडक्ट बी है, हो सकता है प्रोडक्ट बी जो है उसका रेवेन्यू जा रहा है यहाँ तक. ठीक है. प्रोडक्ट सी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोडक्ट सी है, उसका रेवेन्यू जा रहा है यहाँ पर. प्रोडक्ट डी है, फिर उसका रेवेन्यू यहाँ आ रहा है.
तो अल्टीमेटली ये हमको एक ऑन एन एवरेज बता रहे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स मुझे किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट करे, जैसे ये रेवेन्यू इतना जनरेट कर रही है, ये इतना जनरेट कर रही है, ये इतना जनरेट कर रही है। तो अल्टीमेटली ये कैटेगरी स्कोर कार्ड हमको डिफरेंट स्कोर्स बता रहे कि डिफरेंट, या इसको मैं इस तरीके से भी ले सकती हूँ, अगर मैं इसको एक पाई चार्ट के रूप में समझाऊं। जैसे स्कोर कार्ड होता है ना, स्कोर कार्ड में क्या होता है, स्कोर कार्ड में हम लोग को पता चलता है कि स्कोर किसका कैसा है। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट के रूप में अगर आप समझो तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि भाई ये एंटायर 100% में मुझे ये वाले सेगमेंट से कितना मिल रहा है। नहीं आ रहा, चलो इसको यहीं से लेते। जैसे ये सेगमेंट जो है प्रोडक्ट ए, ओवरऑल 100% मार्केट शेयर में प्रोडक्ट ए मुझे सपोज ये दे रहा है आपको 15%, इस तरीके से मैं मान ली। ये प्रोडक्ट मुझे कितना दे रहा है, ये प्रोडक्ट कितना दे रहा है, इस तरीके से। तो ये एक स्कोर कार्ड ऐसा हो गया। अब इसके एक इसका ये मैंने जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया। स्कोर कार्ड जब हम दिखाते हैं तो स्कोर कार्ड नॉर्मली इसका कुछ पैरामीटर्स होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट में, जैसे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो कि भाई ये क्वांटिटी कितना बिक रहा है, ये रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से हमने जैसे प्रोडक्ट रखा 1 2 3 4 इस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रखा है। तो इसका मेजरमेंट जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, नॉर्मली क्वांटिटी एंड रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इस तरीके से। तो कैटेगरी स्कोर कार्ड यही बताता है हमको कि ये इस स्पेसिफिक कैटेगरीज में उनके कुछ पैरामीटर्स हमने रखे हैं। जैसे मैंने पैरामीटर्स लिया क्वांटिटी सोल्ड एंड द रेवेन्यू जनरेटेड, ये दो पैरामीटर लिया। तो वैसे ही डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, सेल्स वॉल्यूम एंड ग्रॉस मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमें पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी की परफॉर्मेंस कितनी है। जैसे ये सेगमेंट 1 में मेरे 2-3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट ए आ रहा है, प्रोडक्ट सी आ रहा है, प्रोडक्ट डी आ रहा है। ठीक है नवमिता, समझ में आ रहा है ये वाला चीज, कैटेगरी स्कोर कार्ड? यस मैम। अच्छा क्लियर, वेरी गुड। चलो तो मैं कैटेगरी स्कोर कार्ड के बाद में आ जाती हूँ कैटेगरी स्ट्रैटेजीज में। अब स्कोर कार्ड देखो, स्कोर कार्ड हम लोग को एक बहुत प्रॉपर एक एनालिसिस दे देता है कि कौन से प्रोडक्ट्स कैटेगरी से मुझे कितना क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है। जैसे बीसीजी मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि डिफरेंट सेगमेंट विल हेल्प अस टू डिवाइज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, कि कौन से सेगमेंट में क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ डाइवेस्टमेंट करना है। वैसे ये कैटेगरी भी, कैटेगरी स्कोर कार्ड विल ऑल्सो गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम, कि भाई कौन सी कैटेगरी में आपको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। तो वो हो गई। अब आ गई आपकी कैटेगरी स्ट्रैटेजीज। In the fifth step of category management process, the retailer develops marketing strategies for the category. There are two types of strategies, demand chain strategies and supply chain strategies. अब category strategy दो तरह की होती है, demand chain strategies and supply chain strategies। दो तरह की strategies आपकी होती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो डिमांड चेन स्ट्रैटेजीज हैं, डिमांड चेन स्ट्रैटेजी क्या करती है, स्टोर ट्रैफिक। while demand chain strategies emphasize store traffic, profit margin, store image, cash and excitement, supply chain strategy emphasize the flow of merchandise and cost of transaction। दो स्ट्रैटेजी है। डिमांड चेन स्ट्रैटेजी मतलब ही समझ में आ रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू डिमांड पुल। जैसे हमने समथिंग रिलेटेड टू डिमांड पुल बोल सकते हैं। जैसे डिमांड को किस तरीके से पुल किया जाए, डिमांड को लेकर सेंटर्ड है। मतलब आप सप्लाई चेन में देखो फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। जब हम डिमांड की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड चेन। तो यहाँ पर डिमांड चेन में हमारा फोकस किस चीज को रहता है, जब हम डिमांड चेन की बात करते हैं तो वी आर फोकस्ड मोर ऑन द स्टोर ट्रैफिक। किस तरीके से आपका स्टोर का ट्रैफिक बढ़े, मतलब भीड़ बढ़े। प्रॉफिट मार्जिन्स, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स हो गया। स्टोर इमेज, स्टोर की इमेज को कैसे ठीक रखना है। देन कैश एंड एक्साइटमेंट्स, कैश बेनिफिट्स एंड ऑल जो होता है ना, डिस्काउंट्स एंड ऑल, उसको बोल रहे हैं हम लोग। एंड सप्लाई चेन, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सप्लाई चेन के बारे में। सप्लाई चेन सीधी सी बात है, ये बैकवर्ड के तरफ जा रहा है आपका सप्लाई चेन में, ये बैकवर्ड के तरफ जा रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ। तो सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी मेनली फोकस करेगी कि आपका जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर रहे
एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स, मतलब ओवरऑल आपके जो एंटायर ट्रांजैक्शन है उसमें फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉपर रहे, ठीक है ना। ये हो गया। अब आ जाता है आपका कैटेगरी टैक्टिक्स, या क्या आपका 6th स्टेप में आ जाते हैं हम लोग। कैटेगरी step in the category management involves determining various tactics that ensures the smooth implementation of strategies. This tactics relates to assortment, pricing, promotion and supply chain. Tactics किस चीज को लेकर है, किस चीज का assortment करना है आपको, ठीक है, उनकी pricing, promotion एंड सप्लाई चेन, ऑफ कोर्स एंड सप्लाई चेन के बारे में। ये हो गया आपका कैटेगरी टैक्टिक्स, मतलब आपको उस स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर ध्यान देना है, कैसे काम करवाना है, वो कैटेगरी को लेकर अभी हमको काम करना है, ठीक है। दिस स्टेप इज द डिटरमाइनिंग वेरियस टैक्टिक्स, जिससे आपका एंटायर जो आपने स्ट्रैटेजी सोचा है उसको प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट कर सके। मेन जो फोकस एरिया इज कैटेगरी टैक्टिक्स का, कि हमने जो स्ट्रैटेजी सोचा है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। Then the last step is the implementation. ये सारी चीज का implementation. Implementation is the last stage of the category management process where all the action takes place. In fact, implementing the category management process in the store is the most crucial element. ठीक है, implementation. Retailers monitor and control the category management process regularly in order to ensure the maximum contribution to profits from every category. Retailers की कोशिश क्या रहनी चाहिए कि वो हर एक कैटेगरी से मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दी कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है।